لاہور روشنیوں کا شہر، صوفیاء کی سرزمین اور زندہ دلوں کا مرکز، جہاں چراغاں صرف بجلی کے بلبوں کا نام نہیں بلکہ دلوں میں جلتی ہوئی ثقافت کی وہ لو ہے جو ہر سال میلہ چراغاں میں روشن ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک میلہ نہیں، یہ عقیدت، رنگ، خوشبو اور امن کا وہ اجتماع ہے جو ہر نسل کو اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ اور اس برس ہم نے اس میلے کو ان آنکھوں سے دیکھا جو شہر کی ہر دھڑکن کو محسوس کرتی ہیں، یعنی ہمارے صحافی، ہمارے مبصر، ہمارے سچائی کے ترجمان۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جھانکتے ہیں ان لمحات میں جو ان کی آنکھ نے قید کیے اور ان کے دل نے محسوس کیے۔ میلہ چراغاں ایک ایسا ثقافتی جشن جس نے لاہور کی روح کو پھر سے جگا دیا۔ رنگ، روشنی اور روایت کی اس شاندار محفل نے نہ صرف عوام کے دل جیت لیے بلکہ اہل قلم اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ شخصیات کو بھی بے حد متاثر کیا۔ میڈیا کے معتبر نام جنہوں نے کئی دہائیوں سے لاہور کی ثقافتی دھڑکن کو محسوس کیا ہے، آج کے دن اپنی زبان سے اس جشن چراغاں کو ایک منفرد خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان صحافیوں کی آواز جنہوں نے دل سے میلہ چراغاں کے دلکش اور دل فریب عناصر کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی جی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کامران لاشاری کی بصیرت کو داد دی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں رانا خالد قمر کی جانب، جو خبر کی دنیا میں صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے لفظوں میں جذبات منتقل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں میلہ چراغاں کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ پنجاب حکومت نے یہ جو اقدام کیا ہے، اٹھایا ہے، یہ بہت خوبصورت اور قابل تحسین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ چھاپ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا وہ دھماکوں میں رہتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں کچھ وہ نہیں ہے، ہم پریشان قوم ہیں۔ ہمارے مطلب کوئی نہ کوئی محاذ پہ کوئی نہ کوئی جنگ کے بادل جو ہے نا منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ تاثر ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم پنجاب والے، خاص طور پر پنجابی، بڑے محبت کرنے والے اور بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم میلوں ٹھیلوں والے لوگ ہیں۔ ہمارے میلے ٹھیلے ہمارے وجہ سے سجتے رہے ہیں، اور یہ نام بھی میلے ٹھیلے ہمارے پنجاب کی وجہ سے ہی، ہم پنجابی کلچر کی وجہ سے پڑا ہے۔ اور یہ جو شاہ حسین المعروف مادو لال حسین کا یہ جو عرس ہے، اس بیسیکلی یہ میلہ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جتنے بھی اب تک عرس یہاں لاہور میں رہے ہیں، ان میں ایک ہی میلہ رہا ہے، اور وہ مادو لال حسین کا میلہ ہے۔ مطلب اس کو پراپر جو میلہ کا جسے کہنا چاہیے وہ یہ مادو لال حسین کا میلہ ہے۔ باقی عرس مبارک رہے ہیں۔ مطلب برِ صغیر میں دو بڑے میلے جو ہے تاریخی طور پر، ثقافتی طور پر جن کا نام ہے یا جن کا مقام رہا ہے، ایک ہندوؤں کا میلہ، کمبھ کا میلہ جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کمبھ کے میلے میں جناب بھائی بچھڑ گئے، اور دو جڑواں بھائیوں کے حوالے سے ایک بڑی مشہور وہ کہانی ہے۔ تو دوسرا مادو لال حسین کا میلہ، یہ مسلمانوں کا میلہ، اور مزے کی بات اس میں مسلمانوں کے اس میلے میں تمام مذاہب کے لوگ ہمیشہ شرکت کرتے رہے۔ پنجاب حکومت نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو، ورلڈ سٹی اتھارٹی کو، اور میں سمجھتا ہوں کامران لاشاری صاحب بھی قابل تحسین، قابل داد ہیں، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا یہ میلہ سجایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی تعداد لاہوریوں کی میرے خیال ہے کہ دہائیوں بعد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ لاہوری ہے، اصل میں یہ ہے لاہوری ہے۔ جب بات ہو ثقافت اور عوامی جذبات کی تو رانا عتیق الرحمان جیسے لوگ ان آوازوں کو سامنے لاتے ہیں جو اکثر ہجوم میں دب جاتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس میلے کو کس زاویے سے دیکھا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 437वें सालाना उर्स मुबारक हज़रत सखी माधोलाल हुसैन के मौके पर 60 साल बाद आज शालामार गार्डन में एक मेले का समा है। पहले जो मेला सजता था वो गली मोहल्लों में सजता था, बाज़ारों में सजता था। 60 साल बाद जो तारीखी शालामार गार्डन है, इसके अंदर वाल सिटी में एक मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है, उनके अहकामात की रोशनी में एक मेला सजाया। और यह कल इतना रश था कि मजबूरन जो गेट थे वो बंद करना पड़ गया। किस तरह लाहौरी जोग दर जोग निकले। लाहौर की ये सकाफ़त है, जब सकाफ़त लाहौरियों को मिलेगी तो लाहौरी ज़रूर इसमें शरीक होंगे और बताएंगे कि ये लाहौर कितनी मोहब्बतों वाला शहर है और कितना मेहमान नवाज और कितने मेले ठेलों मनाने वाला ये शहर है। मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा इंतज़ामिया को, वाल सिटी को और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब को, जो ख़ास तौर पर लाहौर का जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, वो बहाल करने के लिए जारी। और उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरह के इक़दाम करेंगी जिससे फैमिलियाँ भी आएँगी। और दूसरी जानिब इससे हट कर एक बात करूँगा कि वो थिएटर की जानिब भी जा रही हैं, वहाँ पर भी विज़िट किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहबा भी विज़िट कर रही हैं, वो कह रही है थिएटर को भी बहाल करेंगे। फैमिलियाँ वहाँ भी है, जिस तरह यहाँ पर फैमिली आ रही हैं उधर भी जाएंगे। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब। मेला सिर्फ हजूम का नाम नहीं, ये रवैयों, खुशियों और समाजी हम आहंगी का अक्स होता है। शराफत अली आमिर जो तजसिया और गहराई की ज़बान जानते हैं, मेला चरागा को कैसे देखते हैं, चलें उनकी ज़बानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो पंजाब को ये खूबसूरत मेला जो एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। हम भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मेले का समा है। जो लफ्ज़ था मेला ठेला, यानी जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे वो मेला होता था। जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे वहीं पे रिज़्क़ की बरकत होती थी, ठेले लगते थे, खाने पीने की सियाह थी, खाना पीना और खुशियाँ मनाना ये लाज़िम मौजूद थे। पंजाब की सबसे बड़ी खुशकिस्मती इस साल की ये है कि जिस तरह घर को चमकाना एक औरत की जिम्मेदारी है, इसी तरह जो पंजाब सूबा पंजाब की भाग दौड़ जो एक खातून वज़ीर आला के हाथ में आ गई है, मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुराद है मेरी, उनके हाथ में आने से पंजाब के मेलों की सोच और तरतीब ही तब्दील हो गई है। ये उनकी लीडरशिप का असर है कि जो उसके मुतल्लिका महकमे हैं, इन्होंने बाकायदा इस मरतबा इस चीज़ पे काम किया कि रवायती अंदाज से हट के किस तरह लोगों को इस अंदाज में, इस तरतीब में जोड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए कि एक फेस्टिविटी मिले, मेला देखने को मिले, लोगों की फैमिलियों का ये त्यौहार बने। और मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फैमिलियाँ जोग आ रही है और बिला खौफ आ रही है। यहाँ पे डिसिप्लिन उम्दगी से मेंटेन किया गया है। जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी वजह से, सिक्योरिटी एजेंसीज है उनकी वजह से, पाकिस्तान पंजाब पुलिस जो है वो बाहर गेट पे बैठी है, जिसकी वजह से किसी किस्म की हड़बड़ाहट का कोई चांस नहीं है। किसी किस्म की फैमिलीज को, फीमेल्स को कोई ये इशू नहीं है कि वो आ रहे हैं और किसी किस्म की वो बदनज़मी का शिकार हो रही है। और मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आज पंजाब का ये जो सहन है, ये जो घर है पंजाब का, सूबा पंजाब, इसकी देख रेख, इसकी देखभाल एक खातून के हाथ में है। चिराग जलते हैं तो रोशनी सिर्फ रास्तों में नहीं होती बल्कि दिलों में उतरती है। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने इस रोशनी को अपने लफ्ज़ों से कैसे बयान किया, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये देखिए, ये जो मेला लगा हुआ है, ये मेले पहले भी लगते होते थे, लेकिन पहले के मेलों में और इस मेले में फर्क ये नजर आया, आज मुझे देखने में ये पता चला। और ये बहुत खूबसूरत इक़दाम था सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का कि इस मेले में पहले जितने मेले लगते थे उनमें हुनरबाजी, लफंडर पार्टी और जितने नौजवान थे वो आकर हुनरबाजी करते थे। आज के इस मेले में जो इस दफा मेला हुआ है उसमें डिफरेंट ये है, फर्क ये है कि सिर्फ फैमिली की एंट्री हो रही है। फैमिली के अलावा खाली लड़के हैं या यंग पार्टी जो है उनकी एंट्री नहीं हो रही। फैमिली की वजह से ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए। और मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम पंजाब हुकूमत को करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा इक़दाम है सीएम मरियम नवाज साहबा का। बेला चरागा में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती, यहाँ हर रंग, हर आवाज़ कुछ कहती है। शाहिद रज़ा ने इन्हीं आवाज़ों को सुना और हमें दिखाया कि ये जश्न सिर्फ आंखों का नहीं,
दिलों का मेला भी है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई है आज हमें इस तरह का इवेंट देखकर। असल में पंजाब में जो है वो मेलों को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक नया ट्रेंड दिया और एक नया सिलसिला के एक नया लाहौरियों के लिए एक नया जो है वो जोश और जज्बा देखने में आ रहा है। मेले में एक हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में 3 दिनों में लोगों का एक जमे गफीर नज़र आ रहा है, एक रश नज़र आ रहा है। और यकीनन पंजाब को प्रमोट करने के लिए और सियाहत को प्रमोट करने के लिए और ये मेलों के कल्चर को और लाहौरियों के लिए एक नया एक जो जोश और जज्बा है और एक नया ट्रेंड देखने में आया। और हमें बड़ी खुशी हुई है ये देखकर कि एक बड़ा अच्छा इवेंट जो है ना ये मेला चरागा का जो शालामार के अंदर ये सुना है कि 67 ईयर के बाद इस तरह का इवेंट लाहौरियों को देखने को मिला है। जी बाग बहारा ते गुलजारा, बाग बहारा ते गुलजारा, बिन यारा के शिकारी, बिन यारा के शिकारी, यार मिलन दुख जान हजारा, शुक्र करा लख वारी। ओए आवी आवी नाचर लावी, आवी आवी नाचर लावी, मेरे आवे दिलदारा, यार बना के छड़ ना जावी, सैब मलूका यारा। वो लोग जो खबरों के पीछे कहानी तलाश करते हैं और रंगों के बीच छुपी हकीकत को आवाज़ देते हैं। मेला चरागाह सिर्फ 3 दिन का नहीं बल्कि एक पैगाम है अमन, यगानगत, सकाफत और इज्तिमाई खुशी का। हम इन सहाफ़ियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ना सिर्फ हमें दिखाया कि क्या हुआ बल्कि ये भी बताया कि ये सब क्यों अहम था। फिर मिलेंगे अगले साल इसी रोशनी, इसी मोहब्बत और इसी जिंदा दिल लाहौर के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।